Hello students, welcome back to my channel. So today I derive the various formulas related to the Hall effect phenomena. In the last lecture I defined the Hall effect and also discuss their applications. So in this lecture I derived these formulas. So see the diagram where conductor is connected to the battery and a current should be flown from positive to negative and electron will flow from negative to positive. The conductor plate had width W and thickness T. A magnetic field is applied perpendicular to the direction of current. So a transverse electric field is produced which is perpendicular to the direction of current and the magnetic field, and this produced electric field is known as the transverse electric field, and also it is known as the Hall field, and the complete phenomena is known as the Hall effect. So then see the derivation. देखिए कंडक्टर की प्लेट में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के से प्रोड्यूस जो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगेगा वो जेड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज फोर्स एफ बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी should be is in the negative z direction. So charge q is here, the charge q is electron charge E, and v should be the drift velocity of electron, and b is the magnetic field, and the theta angle is the angle that is between the angle of velocity v and the magnetic field, which is 90 degree. So यहाँ से देखिए इक्वेशन 1, एफ बी लॉरेंज फोर्स due to this magnetic field is EVDB. This is, say this, it is equation 1 where VD is the drift velocity of electron. Now देखिए करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स अप्लाइड होगा उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम द एंड A dash, B dash, C dash, Z dash to A, B, C, D, that is in the positive z direction. The electric field direction is from positive end to the negative end. So the force applied by the electric field should be F equal to E into H. Equation 2. Then equilibrium की कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल होंगे. तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में देखिए तो दोनों फोर्स को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ से E चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ई एच अपॉन बी. इक्वेशन 3. देन देखिए जो भी स्लैब कंडक्टिंग स्लैब हमें दी गई है उसमें करंट फ्लो होगी. उस करंट का जो भी फॉर्मूला हम लिखेंगे वो है I इक्वल टू NEA VD, where VD is the drift velocity and A is the area of the conducting plane. Area should be width into thickness. Area equal to W into T. So the formula is I equals to WT NE VD. So VD equals to I upon WT NE. Equation 4. Then देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जहाँ से हम दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इक्वेट करेंगे. वहाँ से देखिए ई एच अपॉन बी इक्वल्स टू आई अपॉन डब्ल्यू टी इंटू एन ई. तो यहाँ से देखिए ई एच अपॉन बी इक्वल्स टू आई अपॉन डब्ल्यू टी इंटू एन ई. एंड अब देखिए अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द वोल्टेज V, related to the voltage V by the formula from equation 6. EH equals to VH upon W, where W is the thickness of the conducting plate, width of the conducting plate. So from equation 5 and 6, 5 and 6 से देखिए दोनों एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस इक्वेशन में इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो वहाँ से हम हॉल वोल्टेज निकालेंगे. हॉल वोल्टेज वी एच इक्वल्स टू 1 अपॉन ई इंटू बी आई अपॉन टी. सो ये हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला है. तो यहाँ से हम एक कोफिशिएंट और एक
रेजिस्टेंस यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। तो 1/any जो फैक्टर है, 1/any फैक्टर को हम यहाँ से बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हॉल कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू होगी VH T upon B into I, where VH is the Hall voltage, T is the thickness of the conducting slab, B is the magnetic field, I is the current. So 1/any equal to VH T upon VI. एंड यहाँ से हम हॉल रेजिस्टेंस भी डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वोल्टेज अपॉन करंट। सो RH इक्वल्स टू B अपॉन NE इंटू T। सो यहाँ से हमने दो फॉर्मूले डिराइव करे, हॉल कोफिशिएंट एंड हॉल रेजिस्टेंस। तो हम हॉल इफेक्ट की हेल्प से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, the concentration of charge carrier, what type of what type of material is that, what type of specimen is that, that is either it is metal, it is conductor, semiconductor, insulator। तो यहाँ से हम ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं हॉल इफेक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने इस हॉल इफेक्ट के डेरिवेशन को डिराइव किया। तो ये जो पूरा फिनोमेना है मैंने दो लेक्चर्स में बांटा था। पहले तो हॉल इफेक्ट को मैंने डिफाइन किया, इस वाले लेक्चर में मैंने हॉल इफेक्ट की डेरिवेशन को डिराइव किया। तो ये फिनोमेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। हम स्टार्टिंग से इस हॉल इफेक्ट को पढ़ते हैं, लास्ट तक पढ़ते हैं, फ्रॉम 12th टू MSc के टाइम तक हम इस हॉल इफेक्ट को पढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सारे डेरिवेशंस हमें ध्यान में रखने हैं इसके। और ये फिनोमेना हमें बहुत हेल्पफुल है वेरियस एरियाज़ में, जहाँ पे अभी हम टेक्निकल एरियाज़ में ये सारी कई चीज़ें फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे फिनोमेना बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो आज का मेरा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आगे के फर्दर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।